everyone, welcome to my accountancy class, and today we'll be starting our new chapter, which is admission. So in admission chapter we'll be getting a lot of things familiar which we have done earlier in change in profit sharing ratio and all those chapters. Okay, so yes, it is based on partnership again, and here we'll be only studying one or two new things. Otherwise those who have done those chapters earlier, like fundamentals of partnership and change in profit sharing ratio, for you most of the things would be common. Okay, now in the previous chapter, change in profit sharing ratio, there we have calculated sacrificing ratio, right? And the formula for our sacrificing ratio was what? Old ratio minus new ratio, right? So in short, I always write it like this: OR and NR. This does not mean anything else. It means old ratio minus new ratio. Okay, so old ratio is most of the times given in the question. In previous chapter we have seen that new ratio was also most of the times given in the question. We did not need to calculate new ratio. But in this chapter, sometimes it may happen that such situations will be given to us in which our new ratio would not be given to us. So in that case, we may have to find that out. So like that, this is one new thing that we are going to study. But other than that, treatment of goodwill we have already learned before. Apart from that, here the new partner who will be coming, who will be admitted in the business, that person will be bringing some portion of goodwill, some portion of valued goodwill. Okay, so that we need to see how we need to put the entries, I mean journal entries that we are going to put, or other entries that we need to put. Apart from that, we have accumulated profits calculation, but accumulated profits calculation we have done before also. There is no such difference. Okay, so we will discuss that later on. First, let me give a brief introduction about what admission means. Now, for any business, it is not always possible that suppose a business has been started with 3 partners, A, B and C. Okay, now it is not always possible that these 3 people will only continue the business for a lifetime. Okay, it may happen that they want to get somebody else into the business for some kind of work. Okay, so this admission may take place due to various reasons. Okay, now it depends on the need of the company always. Maybe sometime the company needs extra manpower, or you can say they need expertise in management. Okay, this can be one reason. There may be a need of extra funds. Okay, sometimes the partners who are already there, the amount that they are investing in the current business may not be enough. In that case, they may be in need of more money, more funds, right? So in order to get more money, more funds from somebody else, they may also take up a new person as a partner in the business. Okay, instead of taking loans, instead of borrowing from somewhere, they may take an option to get a new partner admitted in the business. So this is also possible. So this can be the various reasons for admitting any new partner in the business. Sometimes they may get their relatives, sometimes they may get their friends into the business. Okay, now when a new partner admits into the business, what will be his interest? A person's interest for entering into any business is what? रोकड़ा, प्रॉफिट, है ना? तो प्रॉफिट के बगैर कोई कुछ नहीं करता है. ठीक है, स्पेशली बिजनेस में तो कोई कुछ नहीं करता है. सपोज ये तीनों आ गए बिजनेस में. ठीक है, अब ये तीनों ऑलरेडी बिजनेस में है. अब ये लोग ले रहे हैं डी को. ठीक है, अभी क्या होगा कि प्रॉफिट जो पहले ए, बी और सी ले रहे थे, उसको क्या करना पड़ेगा? उसका बंटवारा करना पड़ेगा और एक इंसान के साथ, है ना? तो यहाँ पे हो जाता है प्रॉब्लम, क्योंकि कैपिटल का मैनेजमेंट का तो ज़रूरत है ही, उसके साथ साथ उनको क्या ज़रूरत है कि प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है. तो प्रॉस एंड कॉन्स दोनों है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप खाली फंड्स यूज़ करोगे, इन रिटर्न कुछ दोगे नहीं. सो डेफिनेटली अ न्यू पार्टनर हु इज़ कमिंग इन टू द बिजनेस इज़ कमिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है,
तो अभी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर का राइट्स किस किस चीज़ पे होता है? एक तो कंपनी जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है उस पे उसका राइट होता है उस पे नए पार्टनर का राइट होता है, ठीक है। उसके अलावा कंपनी के जो भी एसेट्स हैं, ठीक है, जो भी पार्टनर्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? ओनर्स होते हैं ना बिजनेस के। तो फर्म के जो भी एसेट्स है उस पे भी ओनर्स का ही राइट होता है। So, since a new partner will be an owner of the business from now on, that's why this new partner's rights will be on the assets of the business as well. Okay. Now, let us go to ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट पे ही राइट होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हमेशा एसेट्स पे ही राइट होगा। सिर्फ अच्छी चीज़ें तो नहीं है सब जगह में, है ना। कुछ कॉन्स भी है जिस पे भी राइट होना चाहिए, मतलब कि अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो नुकसान भी झेलने का हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई लॉस होता है बिजनेस में तो भी जो नया पार्टनर आ रहा है उसको उसमें भी पार्ट लेना पड़ेगा। दैट मीन्स द न्यू पार्टनर विल बी लायबल फॉर ऑल द लॉसेस, फॉर ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म एज वेल, ठीक है। तो राइट्स खाली प्रॉफिट्स पे और एसेट्स पे नहीं है, उसके लिए भी लाइबल होंगे। कंपनी के जो भी लाइबिलिटीज होंगे, जो भी ड्यूज होंगे, उसके लिए भी न्यू पार्टनर लाइबल होगा, ठीक है। ब्रिंग्स शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। तो नया पार्टनर जो है खाली हाथ नहीं चला आ सकता बिजनेस में और पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है उसको अपने साथ साथ कुछ तो लाना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल, गुडविल, कुछ भी, कोई एसेट, एनीथिंग, ओके। अब जो कैपिटल लाते हैं नए पार्टनर, जो कैपिटल लेकर आते हैं वो इन कैश हो सकता है या फिर इन काइंड भी हो सकता है। इन कैश मतलब पैसा लेकर आएगा, या तो बैंक बैलेंस लेकर आएगा या फिर कैश लेकर आएगा। इन काइंड मतलब क्या है कि कोई सामान लेकर आएगा, मे इट बी लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी वैल्यूएबल एसेट जिसको बिजनेस काफ़ी दिनों तक यूज़ कर सकेगा, ठीक है। सो एनी वैल्यूएबल आइटम कैन ऑल्सो बी ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर एज कैपिटल इन द बिजनेस। उसके बाद बात करते हैं गुडविल की। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग वैल्यूड गुडविल की बात कर रहे हैं, बुक गुडविल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने पहले चैप्टर में भी बताया था कि बुक गुडविल जो होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ओके। तो बुक गुडविल को खाली राइट ऑफ ही करते हैं, उसके साथ और कुछ काम नहीं है। परचेज्ड गुडविल जो है इसको हम लोग वैल्यूएशन करते हैं, जिसका हम लोगों ने मेथड ऑलरेडी लर्न किया हुआ है गुडविल का चैप्टर में, या फिर जो ICSE बोर्ड्स वाले हैं उनके लिए वो गुडविल का चैप्टर, और जो CBSE बोर्ड्स वाले हैं उनके लिए ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर में है, ठीक है। तो सबने गुडविल पढ़ा हुआ है। गुडविल कैलकुलेशन का हम लोगों ने तीन मेथड्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक था हम लोगों का एवरेज मेथड, दूसरा था हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा था हम लोगों का सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा था हम लोगों का कैपिटलाइजेशन मेथड। तो तीनों मेथड्स के हिसाब से हाउ वी नीड टू कैलकुलेट गुडविल दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड, ओके। सो व्हेन अ न्यू पार्टनर्स कम्स इनटू द बिजनेस, क्योंकि जो नया पार्टनर आ रहा है उसको क्या मिल जा रहा है, पका पकाया हुआ खाना, है ना। उसको कुछ तैयारी नहीं करना पड़ रहा है। जो बिजनेस इतने दिनों से चल रहा था, जिस बिजनेस को किसने मिलकर के खड़ा किया, ये तीनों ने, ABC ने मिलकर के, सपोज 10 साल पुराना बिजनेस है, ठीक है, 10 years पुराना बिजनेस है, तो इसको बनाया किसने, बनाया A, B, C ने, ठीक है। इसको पॉपुलर किया, एडवर्टाइज किया, इसके लिए गुडविल तैयार किया, जो रेपुटेशन है वो तैयार किया, किसने किया, A, B, C, ठीक है। बट अब जब नया पार्टनर आएगा तो इसको ये सब चीज़ फ्री में मिल जाएगा, है ना। ये इसने पिछले 10 साल से कोई मेहनत नहीं की, जो रेपुटेशन बना है, जो बिजनेस अभी चल रहा है, जैसा चल रहा है, वो किसने अर्न किया है, A, B, C ने, विथ देयर हार्ड वर्क, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ कंपेंसेशन करना तो बनता है। ये जो कंपेंसेशन करेगा नया पार्टनर टू द ओल्ड पार्टनर्स, दैट विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ गुडविल। तो गुडविल नया पार्टनर लेकर आएगा, अ पोर्शन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म
सपोज गुडविल, फर्म का जो गुडविल है एस्टिमेटेड अमाउंट है, राइट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि गुडविल, वैल्यूड गुडविल जो होता है एक एस्टिमेटेड अमाउंट होता है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि एकदम एब्सोल्यूट एक्यूरेट अमाउंट है, ठीक है। इट इज समहाउ एस्टिमेटेड, ओके। तो सपोज गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख रुपए है, ठीक है, फर्म का गुडविल 1 लाख है। अभी सपोज डी आ रहा है, वो पूरा गुडविल का पैसा तो नहीं पे करेगा, है ना, उसको जितना बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। अभी बेनिफिट कितना मिलेगा, बेनिफिट बोले तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग की बात, ठीक है। सपोज डी आ रहा है 1/5 प्रॉफिट के लिए, ठीक है, 1/5 पोर्शन ऑफ प्रॉफिट के लिए, मतलब फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 1/5 पोर्शन, 5 भाग का 1 भाग किसको मिलेगा, डी को मिलेगा, ठीक है। तो 1/5 प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट का मतलब वही होता है, ठीक है। अभी डी 1/5 प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रहा है, तो गुडविल जो है, जो वैल्यूड गुडविल ऑफ द फर्म है, उसमें से भी डी क्या करेगा, 1/5 प्रोपोर्शन पे ही कंपेंसेट करेगा टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है। अब ये जो कंपेंसेशन पे करेगा ये सबके लिए नहीं पे करेगा, हमेशा किसके लिए पे करेगा, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं फ्यूचर में, इसके लिए जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब नए पार्टनर के लिए जो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं खाली उन्हीं को पे किया जाएगा, ठीक है। अभी सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है, सपोज ए एंड बी कर रहे हैं, तो डी का गुडविल का प्रोपोर्शन जो है उसमें से खाली ए और बी को ही पैसा मिलेगा, सी को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइस वाला बात क्यों आता है, बेसिकली जिन्होंने जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब क्या है कि फ्यूचर में जो डी को प्रॉफिट मिल रहा है विच इज 1/5, ये ए और बी अपना जो प्रॉफिट शेयर है उसमें से कुछ छोड़ रहा है ए और बी, ठीक है। दोनों, बोथ ए एंड बी आर लीविंग सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट from their share of profit, and that is why D is getting a part of the profit of the firm, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि D आ रहा है मतलब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा फर्म का, प्रॉफिट जितना भी है, मतलब 100% प्रॉफिट अगर पहले होता था, 100% बोले तो मतलब टोटल प्रॉफिट जो भी है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट सपोज पहले 5 लाख होता था, तो ये 5 लाख जो प्रॉफिट है उसमें से पहले कौन लेता था, ए बी एंड सी तीनों लेते थे। अभी यहाँ पे और एक पार्टनर आ गया, कौन, डी। अभी भी अगर प्रॉफिट 5 लाख ही होता है तो ए बी सी को पहले जितना मिलता था उतना ही मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, डी को छोड़ के डी को भी देना पड़ेगा, डी को कितना देना पड़ेगा, 1/5 देना पड़ेगा। उसके बाद बचेगा, मतलब डेफिनेटली बचेगा। तो जो भी नया पार्टनर आ रहा है, बेसिकली बात क्या है कि जो पहले प्रॉफिट था उसके हिसाब से अगर देखें, जो तीन लोगों में बट रहा था अभी वो 4 लोगों में बटेगा। अब अगर 4 लोगों में बटेगा तो खाने वाले मुंह ज़्यादा हो गए ना, तो खाना तो कम कम होगा सबका, तो जो कम कम होगा, जो जो छोड़ रहा है, जो जो कम कम खा रहा है, उन्हीं को गुडविल का कुछ प्रोपोर्शन मिलेगा, ठीक है। तो यही बात है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस, देन वी विल clear it out even better, okay। Now let us talk about what things we are going to learn in this chapter, okay। Now since we are going to learn 4-5 chapters on partnership, so it will you may get confused sometimes that what we are learning in which chapter, so you must be very clear कि आप कौन से चैप्टर में क्या पढ़ रहे हो और उस आइटम के अंदर, उस टॉपिक के अंदर क्या क्या आपको करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दिया हुआ है तो कैलकुलेट करेंगे, तो ये सीखेंगे हम लोग कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे करना है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का कैलकुलेशन तो हम लोगों को पता है, अभी उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ट्रीटमेंट बोले तो वो डॉक्टर वाला ट्रीटमेंट नहीं, यहाँ पे खाली जर्नल एंट्री कैसे पास करना है, किसी भी बुक में कैसे पास करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे पास करना है, तो वो ट्रीटमेंट देखेंगे हम लोग, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑल्सो वाज देयर इन योर प्रीवियस चैप्टर, तो इसको भी कैसे हैंडल करना है हम लोगों को, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के अंदर, वो भी हम लोग देख लेंगे।
ठीक है। अभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कोई अभी सोच रहा होगा कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होता क्या है, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट 11 में तो कुछ लिए नहीं होंगे, स्पेशली दिस ईयर्स बैच, क्योंकि लास्ट ईयर तो आप लोग कर रहे थे ऑनलाइन क्लास, है ना, तो ऑनलाइन क्लास का तो कॉन्सेप्ट वैसे ही गया, ठीक है। सो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आई विल एक्सप्लेन नाइसली। रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में बेसिकली हम लोग सीखेंगे कि एसेट्स और लाइबिलिटीज जो हम लोग के होते हैं उसको कैसे करके रीवैल्यू करना होता है, ठीक है, तो वो हम लोग सीखेंगे। और जिन्होंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किया हुआ है वो चैप्टर, उनको तो ऑलरेडी आता है, आईसीएसई बोर्ड वालों को नहीं पता होगा तो वो लोग देख सकते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, सो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बोले तो जो करंट कैपिटल होता है, सपोज ए बी एंड सी है, ये लोग जब बिजनेस स्टार्ट किए या फिर जब लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट है उसके हिसाब से, अभी कैपिटल तो हम लोगों को पता है कि कैपिटल चेंज हो सकता है, कैपिटल ऐड कर सकता है पार्टनर, विथड्रॉ भी कर सकता है, राइट, इट इज़ पॉसिबल। तो अगर पार्टनर ने शुरू में जब उसने इन्वेस्ट किया था, जब पार्टनर ने शुरू में बिजनेस चालू किया था, तब जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था, अगर उसके बाद कुछ चेंज हुआ है तो हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग जिस डेट में चेंज करेंगे, सपोज 31 मार्च 2021 को हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस में जो है एडमिशन हो रहा है, ठीक है। तो 31 मार्च 2021 में जो अरेंजमेंट था, मतलब ए का सपोज कैपिटल था 1 लाख, बी का कैपिटल था 2 लाख, सी का कैपिटल था 3 लाख, ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मतलब क्या है कि इनके कैपिटल जो है यहाँ पे जैसे दिए हुए वैसे नहीं रहेंगे, वो क्या होगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। अभी इसको चेंज करने के लिए अलग अलग मेथड होता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, करेंगे, उसमें भी क्वेश्चंस करेंगे। तो सपोज अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है पार्टनर्स का, जो हम लोग निकालेंगे, अगर उसके हिसाब से कैपिटल को एडजस्ट करना है तो उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशंस दिए होंगे, 2 सिचुएशंस होता है अपने को जिसके हिसाब से हम लोग को कैपिटल एडजस्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। सो दैट ऑल्सो वी विल बी लर्निंग हियर। सो बेसिकली दिस 4-5 थिंग्स, ओके, आउट ऑफ दिस थिंग्स आई थिंक 2-3 थिंग्स वी हैव ऑलरेडी लर्न। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है जो एकदम नया चीज़ है, सीखोगे, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो ये चीज़ भी आपने सीखा हुआ है, ठीक है, कुछ नया नहीं है। तो बेसिकली एडमिशन चैप्टर में ज़्यादातर चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। खाली एक चीज़ नया है कि यहाँ पे नया कोई पार्टनर आ रहा है, ठीक है। तो नया पार्टनर आने से डेफिनेटली काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, तो वो सारे चेंजेस हम लोग यहाँ पे अभी देख लेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, ओके। अभी क्वेश्चंस करना चालू कर देते हैं। नाउ यू सी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 1-2 क्वेश्चंस में तो आप लोगों को कराऊंगी, ताकि एक्चुअली वैरायटी हैं 1-2 टाइप के, ये नहीं कराने से भी चलता है। जब हम लोग बड़े क्वेश्चंस में आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये कवर हो जाएगा। स्टिल फॉर योर क्लैरिटी आई विल बी डूइंग 3-4 क्वेश्चंस ऑन दिस, ओके। नाउ अभी हम लोग को अलग अलग सिचुएशंस दिए होंगे, उसके हिसाब से हम लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट फॉर दिस बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अरे यहाँ पे तो ऐसा लिखा हुआ है, वहाँ पे तो ऐसे लिखा हुआ है, अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। इन अकाउंटेंसी class 12th especially, the most important thing that you need to keep in mind is read your questions very carefully. क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे गड़बड़ होगा ही सॉल्यूशन में, ठीक है। कुछ और मांगेगा, आप कुछ और करके आ जाओगे, ठीक है। आपको पता है फिर भी नहीं कर पाओगे, ठीक,
ठीक से, क्योंकि आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा ठीक से. सो प्लीज़ रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ चैप्टर्स दैट यू विल बी स्टडिंग. ओके, नाउ let us go to those who are following DK Goel. All of you go to page number 4.143, question number 1B. I have ICSE's books, but I did not open it now. It will be somewhere around that number only. Okay, even in ICSE's book. So you see, question number 1B. A and B were partners sharing profits in the ratio of 21:9. ठीक है, तो दोनों पार्टनर कौन कौन है? A एंड B. A और B पार्टनर है, दोनों कौन से रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? 21:9. ठीक है, 21:9. ये क्या है? ओल्ड रेशियो. Old ratio of old partners. Okay, C was admitted on 9/21 share in the profits. अभी कौन आ रहा है? C. कहाँ पे आ रहा है? इनके बिजनेस में. कौन से शेयर पे? 9/21 शेयर पे. ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट होगा फ्यूचर में, जो भी प्रॉफिट होगा 21 पार्ट में से 9 पार्ट किसको मिलेगा? C को. ओके, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स. अभी जब ऐसा सिचुएशन होगा कि हम लोग को ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, और जो नया पार्टनर है वो कितने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रहा है वो खाली दिया हुआ है. तो इस केस में हम लोग को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देख लो एकदम अच्छे से. ठीक है, अब कंपनी का जो भी प्रॉफिट है, ठीक है, वो 1 लाख हो, 10 लाख हो, 5 करोड़ हो, कितना भी हो. ठीक है, जितना प्रॉफिट है दैट इज इक्वल टू 100% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. ठीक है, अभी अगर मैं बोलूँ 50% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, तो 5 लाख का अगर 50% लेंगे तो 2.5 लाख. ठीक है, ये क्या है? 50% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे बोलने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम जो प्रॉफिट किसी भी साल में फर्म ने अर्न किया है वो हमेशा कितना होता है? 100% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. ओके, अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा फ्रैक्शन समझने पे. ये सर्कल है, ये क्या है? प्रॉफिट ऑफ द फर्म. ठीक है, ये प्रॉफिट कितना है? 100%. ठीक है, अभी इसमें से किसको किसको मिलेगा? A को मिलेगा, B को मिलेगा, C को मिलेगा, D है तो D को मिलेगा. ठीक है, तो ऐसे करके फ्रैक्शन हम लोग समझ सकते हैं कि कितना कितना पार्ट किसको मिलेगा, उसको इस सर्कल में विच इज़ 100% उसमें हम लोग दिखा सकते हैं. ठीक है, फ्रैक्शन सबको पता है, सबने सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड से फ्रैक्शन पढ़ना शुरू कर दिया है ना. अच्छा, अब ये आ गया हम लोग का क्या? 100% प्रॉफिट. अगर 100% को हम लोग इन एब्सोल्यूट नंबर्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 100/100. ओके, तो 100% प्रॉफिट मतलब क्या है? 100/100, which if we cross out we will get what? 1, which is equal to, तो 100 प्रॉफिट which is equal to 1. तो 100% प्रॉफिट की अगर बात कर रहे हैं तो किसी भी फर्म का 100% प्रॉफिट विल ऑलवेज बी व्हाट? इक्वल टू यूनिटी, दैट इज 1. ओके, अब 1 क्या है? फर्म का 100% प्रॉफिट. ओके, अभी सी का जो रेशियो हम लोग को दिया हुआ है ये क्या है? सी का न्यू रेशियो दिया हुआ है ना. सी का जो रेशियो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है? सी का न्यू रेशियो. और ए और बी का हम लोग को क्या दिया हुआ है? ओल्ड रेशियो दिया हुआ है. अभी ए और बी का तो न्यू रेशियो दिया हुआ है नहीं, सी का हम लोग को न्यू रेशियो दिया हुआ है. तो सी का जो न्यू रेशियो है इसके मदद से, इसके हेल्प से हम लोग ए और बी का न्यू रेशियो निकाल लेंगे. सी का ऑलरेडी दिया हुआ है, निकालने का ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अभी इतना याद रख लो. अभी हम लोग आते हैं हमारे सॉल्यूशन पे. ठीक है, नाउ
ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे ए और बी या फिर ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो और सी का यानी कि न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ होगा, तो उस केस में हम लोग कैसे करके इसको क्या था 21:9, 21:9, ठीक है। तो ऐसे केस में कैसे हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, इसको यूज़ करके, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट अगर 1 है, टोटल प्रॉफिट अगर 1 है तो उसमें से 9/21 पार्ट अगर हम लोग सी को दे देंगे तो कितना बचेगा, क्या करेंगे 1 - 9/20 पार्ट दे दिया किसको, सी को, ठीक है। तो ये इतना दे दिया, अभी टोटल प्रॉफिट में से सी को तो दे दिया हम लोगों ने, तो जो भी बचेगा वो किसके लिए बचा, ए और बी के लिए, ठीक है। समझ में आया। हम लोग का जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से ये दे दिया हम लोगों ने सी को, देने के बाद जो बचा वो हम लोगों का किसके लिए बचा प्रॉफिट, ए और बी के लिए, तो इन दोनों में ही शेयर हो जाएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को अभी यहाँ पे लिखेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है। जो प्रॉफिट ए और बी के लिए बच जाएगा वो प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट तो ये सब समझ लिया आप लोगों ने, तो आई एम रबिंग इट ऑफ, ओके। सो रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए एंड बी इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट कितना है हम लोगों ने निकाल लिया 100% यानी कि 1, माइनस सी को दे देंगे कितना, उसका जो पोर्शन है वो, ठीक है। देने के बाद हम लोगों का कितना बचेगा, इसका कैसे निकालेंगे एलसीएम से, ठीक है। 21 - 9/21, 21 से अगर 9 माइनस करेंगे तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा 8, सो 8/21। तो ये क्या बन गया हम लोग का रिमेनिंग प्रॉफिट, मतलब हम लोग का जो प्रॉफिट है उसमें व्हाट एम आई डूइंग, अच्छा 8 कैसे रहता है, माय गॉड 12 है ना, 12/21, अच्छा। तो रिमेनिंग प्रॉफिट अपना कितना बचा 12/21। तो अभी हम लोगों ने जो प्रॉफिट हम लोग का जो रिमेनिंग प्रॉफिट था उसमें से जो प्रॉफिट था टोटल उसमें से सी को देने के बाद हम लोग का प्रॉफिट कितना बचा 12/21। अब ये प्रॉफिट किसके अंदर शेयर होगा, ए और बी के अंदर शेयर होगा। कौन से रेशियो में शेयर होगा, ये जो ओल्ड रेशियो है उस शेयर में ही इसको बांटेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ क्लू दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग इसी रेशियो को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस रेशियो को यूज़ करने से क्या हो जाएगा, हम लोगों को ए और बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने में हेल्प हो जाएगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड प्लीज, या सो एज न्यू शेयर, अभी यहाँ पे क्या निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज न्यू शेयर लिख लेते हैं इसको। एज न्यू शेयर विल बी व्हाट, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है यानी कि 12/21 उसका कितना पोर्शन 21 इसका टोटल 21 + 9 = 30। तो रेशियो को हमेशा, जिनको भी नहीं पता है रेशियो को हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। सपोज अगर लिखा हुआ है 3:2:1 तो 3 + 2 + 1 = 6। तो ये जो बंदा है यहाँ पे सपोज ए बी सी है, ठीक है। तो ए का पोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयर कितना है 3 टोटल 6, बी का प्रॉफिट शेयरिंग पोर्शन कितना है 2 टोटल 6, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे रेशियो को लिखना होता है, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ऐसे करके ही करना है हम लोगों को हमेशा, ओके। नाउ एज न्यू शेयर इज हाउ मच 21/30 ऑफ
12/21, मतलब जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसका ये रेशियो हो जाएगा ए का प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि कुछ और क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो हम लोग इसी को पकड़ेंगे। ठीक है, सी का तो ऑलरेडी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ही हुआ है, तो इसीलिए इसी को हम लोगों ने सबसे पहले माइनस किया यहाँ पे। ओके, नाउ बी इज न्यू शेयर, ये भी हम लोग निकाल लेंगे। बी इज न्यू शेयर विल बी व्हाट, अगेन 12 बाय जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसमें से 21 भाग किसको मिल गया, ए को, और 9 पार्ट किसको मिलेगा, 9 पार्ट मिल जाएगा बी को। ठीक है, और सी का ऑलरेडी हम लोगों को दिया हुआ है। अभी सी का यहाँ पे अभी हम लोग पहले नहीं लिखेंगे, देखते हैं इनका बेस क्या होता है। ठीक है, बेस हम लोग को मैच करना होता है, नहीं तो रेशियो नहीं बनेगा। ठीक है, बेस मतलब डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर सबका सेम होना चाहिए, अदरवाइज रेशियो नहीं मिलेगा हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इनका जो है एलसीएम क्या आता है, बेस क्या आता है, तो उसके हिसाब से ही हम लोग यहाँ पे अपना कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 21 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, और कहाँ पे जाता है हम लोगों का 3 10 ज़ा 30, और 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, और तो जाता है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हम लोग का 12/30। अच्छा है, 12/30 कैसे, यहाँ पे और कैलकुलेशन जाएगा ना, 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, तो यहाँ पे अपना आ जाता है 2/5, यहाँ पे अपना आ जाएगा 6/35। ओके, अच्छा, तो बेस मैच नहीं हुआ तो हम लोग को बेस मैच करना है। अच्छा, दिस वन आई एम राइटिंग अ लिटिल बिट प्रॉपरली। ओके, 21 minus 9/21 equals to, we get 12/21. Okay, so here we see that यहाँ पे बेस हम लोग का आ गया 5, यहाँ पे हम लोग का बेस आ गया 7 and 5 35। ठीक है, तो अभी हम लोग को सबका बेस तो सेम करना ही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इनटू। ठीक है, तो बेस को सेम करना है, यहाँ पे 35 है और यहाँ पे कितना है 21। हाय राम, तो यहाँ पे हम लोगों को एक्चुअली काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे 21 35 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। चलो छोड़ो, इसको अभी नहीं करते। और सी का न्यू शेयर, सी इज न्यू शेयर विल बी इज इक्वल टू व्हाट, 9/21। अभी देखो सबका बेस अलग अलग है ना, सबका बेस अलग है, तो बेस तो हम लोग को मैच करना ही पड़ेगा अगर रेशियो निकालना है तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। 21 35 21 5। ठीक है, 5 से कर लेते हैं, 5 7 ज़ा 35 21 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21 7 5 ज़ा 35 35 इंटू 3 15 0 15 का 1 5 3 ज़ा 15 16 7 and 5 we get 5 7 ज़ा 35 21 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15, so 7 5 ज़ा 35 35 into 3 5 5 ज़ा 25 2 and 5 3 ज़ा 15 16 17 175. We are getting 175 as LCM. My God. Here we get A's new share is 2 and 6, and we get 6/35 we got, and 9/21 we got, then 2:9:35. What mistake am I doing? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रुक जाओ लिख लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ तक लिख लो, मीन्स ये नहीं, ये कैलकुलेशंस मत लिखो। ठीक है, यहाँ तक लिख लो, उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट लाइन आएगा ये। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या था अपना, 2/5 2/5 is to
Here we have 6/35 and we have 9/21. Let me do the calculations again. You also, all of you, please do it by yourself. We get 5, 35 and 21. So 5 1s are 5, 5 7s are 35, 5 3s are 21. 7 1 1 3s are 21, 7 3s are 21, 5 5 1s are 5, 5 2s are 10. अच्छा 105 we are getting. I don't know what calculation I was doing earlier. So we are getting base is 105. तो अभी हम लोगों को क्या करना है, सारे रेशियोज़ का बेस को 125 बनाना है. ठीक है, कैसे बनाएंगे यहाँ पे देख लो एक बार. 2/5 है. अच्छा और जगह लिख करके लिखते हैं. 2/5 है अपना. ठीक है, ये कैलकुलेशन बेसिकली जिनको आता नहीं है मैं उनके लिए कर रही हूँ. ठीक है, सो 5 है यहाँ पे हम लोग का. ठीक है, 5 है तो 7 3s are 21. यहाँ पे 21 लिख देंगे. ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21. जो बेस में मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी उसी को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, इज 2 6 इंटू 35 यहाँ पे है हम लोग का. बचा कितना, 7 5s are 35 तो इंटू 3. सो 35 7 5s are 35 और यहाँ पे इंटू 3 एंड 3. यहाँ पे हम लोग का क्या है 9/21. 21 को भी हम लोग को 105 बनाना है. 7 3s are 21 इंटू 5 करना पड़ेगा फिर हम लोगों को इंटू 5. ठीक है, तो ऐसे करके एलसीएम को यूज़ करके यहाँ पे हम लोग बेस सेम कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे सबका बेस हो जाएगा सेम 105. ठीक है, न्यूमरेटर क्या बन जाएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, 6 3s are 18, 9 5s are 45. So our ratio will be what, 42:18:45. Did our answer match? No, we have to cross it out. ये फिर से क्रॉस आउट हो जाएगा. 3 3 3 3 से जाएगा. ठीक है, अभी देखो 3 से क्रॉस आउट भी हो रहा है, इसको करो. 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 9s are 3 6s are 18, 3 कितना सा 45, 3 9s are 40. So 14:6:15. Okay, so this is our ratio. I don't know what calculation I was doing. Okay, सो दिस इज़ आवर न्यू रेशियो. ठीक है, यहाँ पे लगा काफ़ी क्लमजी है, नहीं इतना क्लमजी, बहुत ही ईजी चीज़ है. ठीक है, खाली कैलकुलेशंस करना है और कुछ नहीं है. एंड अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी नीड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस. अगर ऐसा सिचुएशन आया तो ऐसे करके ही सॉल्व करना है. ठीक है, अभी अलग सिचुएशन आएगा तो उसके लिए हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे. अभी टाइम काफ़ी हो गया. ठीक है, and for those who are doing my classes in school, I did not complete that chapter, change in profit sharing ratio. Alternatively I'll be completing like आपका जो जिस दिन अकाउंटेंसी क्लास है उसके अलावा, जैसे कि ट्यूसडे और थर्सडे को मैं वो क्लासेस ले लूँगी. ठीक है आप लोगों का. सो यू प्लीज़ डू द क्लासेस रेगुलरली फॉर दिस फ्यू डेज until and unless we complete this change in profit sharing ratio chapter. Thank you so much everywhere everyone, and please study nicely.